So good evening students. Today we starting with the marketing segmentation, and it's a second topic of marketing, and it's one of the important topic for UGC net management and commerce students. ठीक है, तो आपको आज इस लेक्चर के बाद समझ में आएगा कि मार्केटिंग सेगमेंटेशंस क्या होता है, एक बीइंग अ मार्केटर कौन कौन सी चीज़ों को हमको दिमाग में रखना पड़ता है, एंड ऑन द व्हाट बेसिस वी हैव टू बी द डिवाइड द मार्केट इन अ डिफरेंट सेगमेंट. Okay, so before I just requesting you, please do like and subscribe my channel if you are liking my videos. So now we are starting with the marketing segmentation or market segmentations, and market segmentation divided the market into the well defined slices, and market segmentation consists of a group of the customers who share a similar set of the needs and wants, and what marketers task is to identify the appropriate numbers and nature of the market segmentations and decide which one to the target. And market segmentation is all about कि suppose that being a marketer, whenever we just launch to be in a new market, new product in the new market, or if we are having some existing product and we are looking for the new market, then what factors we have to be considered, what factors we have to be careful while going into the international market. We have to be divide the market in a different segment. So this is the thing we are going into the different segmentations through the marketing segmentations. मार्केटिंग सेगमेंटेशन आपको एक बार दोबारा बता रहे हैं, पूरा मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है कि पूरी ओवरऑल मार्केट्स को हमको डिफरेंट सेगमेंट पर डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, बिकॉज ये तो हम लोगों को पता है कि हम लोग पूरी दुनिया को वी कैन नॉट प्रोवाइड द कस्टमाइज प्रोडक्ट इफ यू आर कमिंग विद द मास मार्केटिंग. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी गो विद द डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन, वी हैव टू बी फॉर्म द मार्केट डिफरेंट मार्केटिंग सेगमेंटेशन, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी प्रोवाइड अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. Now these are the market segmentation patterns. So basically we are having the three common patterns for the market segmentation. First is the homogeneous, second is the diffuse preferences or diffuse pattern, third is the clustered. Homogeneous is all about कि a segment with the more or less similar preferences and there is no natural segment is na homogeneous. Means जितने भी कस्टमर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जो भी एक सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं, दे आर हैविंग मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ द प्रेफरेंसेस. इफ सपोज कोई मारुति का पसंद कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर विच होम वी आर टारगेटिंग दे आर लाइकिंग अराउंड द मारुतिस. किसी को ऑल्टो चाहिए, किसी को वैगनआर चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स दे आर हैविंग द डिफरेंट टाइप सेम टाइप ऑफ द नीड्स. दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस. गॉट इट. डिफ्यूज इज ऑल अबाउट कि जितना भी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है या जितना भी कस्टमर प्रेफरेंसेस है, दे आर हैविंग देम स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट choices. Like suppose that if we are targeting the populations where the population is around the 100 peoples, then what actually few peoples are looking for Maruti and few are looking for Hyundai and few are looking for Tata and few are looking for the Kia Motors. So all those customers, all those consumers who are residing in the same area, what they are having the different what we call customer preferences. They are having the different choices toward the particular automobile sector. So that is called diffuse patterns of the marketing segmentations. Third is the cluster preferences. In the cluster preferences, what we do in this case, the marketer reveals distinct clusters, each having its own preferences. Means what we do, we make small clusters, and accordingly we try to fulfill the demand of those customers. Okay. And now we are starting with the very first, that is called homogeneous. I've already told you in the last slide. Homogeneous is all about the consumers have similar preferences. They are having the similar type of choices and they don't have in the natural segment. Okay. Next is all about the diffuse preferences. Diffuse preferences is all about consumers preferences and customer preferences scattered all over the different market segment and different categories of the brands available for the same product. Consumer choices are different, and first brand has first mover advantage. That means all those brands are having all those brands who have started the very first product concerned with those related product, they are having the first mover advantage. Suppose that if we are looking for nowadays there is the electrical vehicles is going on in the market, means all those companies, means only those companies who have started manufacturing in the very first time, so those brand will get the first mover advantage in the market. Now this is all about the cluster preference.
Cluster is all about the positions in the center, position in the large segment, and develop a product for the each segment. Mean we are dividing the market in a different clusters. Accordingly, we have to be the develop product for the each and every segment. Now these are the basics 4 criteria for the segmentation. We have to be divide the market on the these segmentations, because अगर हम लोग अगर segmentations के basis से product को divide नहीं करेंगे, so we have to be face the market failures in a long run. So that is the only reason it plays a very key roles for the marketers, and we have to be very concerned, we have to be very careful while choosing the segmentations. Okay. First is geographical segmentation. Geographical segmentation is divided on the basis of the countries, on the basis of the state. Suppose जैसे हम लोगों को पता है, हम लोग दूर का बात नहीं करते, अगर इंडिया का बात करते हैं, we are having the different market for that in a different regions. अब मान लीजिए एयर कंडीशंस का बात करें, if your target market is the हिमाचल प्रदेश और द कश्मीर, तो हमको पता है वहाँ पर मौसम ऐसा नहीं रहता जहाँ पर वहाँ पर लोग एसी बहुत कम यूज करते हैं, ना वेरी फ्यू एरिया दे आर यूजिंग द एयर कंडीशंस. तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ सिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, वी हैव टू बी डिवाइड द डिफरेंट मार्केट. ठीक है. अगर भाई बात करते हैं कि इंडिया की बात करिए, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर दूसरा हो गया, साउथ ईस्ट का कल्चर दूसरा हो गया, नॉर्थ इंडियंस का कल्चर दूसरा हो गया. तो वट एवर द प्रोडक्ट इफ यू आर मेकिंग, वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सिटीज. फिर टीयर 1 सिटीज के लिए अलग प्रोडक्ट है, टीयर 2 सिटीज के लिए अलग है, टीयर 3 सिटीज के लिए अलग है. ठीक है. तो समटाइम्स वी हैव टू बी डिवाइड, वी हैव टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एरिया, अर्बन एरियाज. भाई रूरल एरियाज के लिए अलग प्रोडक्ट होगा, अर्बन एरियाज के लिए अलग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वन साइज फिट इट ऑल वो वाला कॉन्सेप्ट सब जगह नहीं चल सकता. ठीक है. अगर आपका प्रोडक्ट बहुत एक कंट्री तक की लिमिटेड है, कंट्रीज लाइक जस्ट इंडिया, जहाँ पर इतना ज्यादा मल्टी कल्चर्ड के लोग हैं, 400-500 किलोमीटर में अगर कहीं भी मूव करेंगे फ्रॉम एनी वेयर, कल्चर पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा लैंग्वेजेस आर चेंजिंग. तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी कस्टमाइज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिटीज. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन. Second, we are talking about the demographic. Demographic is all about these demographical factor, whatever I put it down in this slide. So first is the age, basic common sense. भाई 0 से 5 साल का अलग हो सकता है प्रोडक्ट, 0 से 1 साल का अलग हुआ, 1 से 5 का अलग हुआ, 5 से 10 साल का अलग, 10 से 20 का अलग, 20 से 30 का अलग, 30 से 40, 40 से 50. तो whatever the age segment you are making, तो एज के बेसिस पे वी हैव टू बी कस्टमाइज द प्रोडक्ट इफ योर प्रोडक्ट इज बेसिकली फॉर द किड्स. तो आपके टारगेट मार्केट्स भी कहीं किड्स ही होगी. तो दिस इज द थिंग कि एज के बेसिस पे कैसे हम लोग ओवरऑल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे. इनकम, यस, इनकम प्लेज ए वेरी की रोल. भाई देखिए कुछ लोग जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 20 लाख है, किसी की 50 लाख है. तो अब सेम प्रोडक्ट तो यू कैन नॉट सेल फॉर द अक्रॉस द ऑल द इनकम ग्रुप पीपल्स. तो इसीलिए देखिए आप मारुति का 3 लाख का कार भी आ रहा है, 5 का भी है, 8 का भी है, 12 का भी है, 15 का भी है. तो दिस इज द थिंग कि वी हैव टू बी डिवाइड अवर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, क्योंकि हाई इनकम ग्रुप को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लो इनकम ग्रुप को भी हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि लो इनकम के लोग ज्यादा होते हैं, मास मार्केटिंग आपका उन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में हो पाएगा. तो दिस इज कॉल्ड इनकम के बेसिस पे हम लोग कैसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं. नॉट इवन द ऑटोमोबाइल, अगर दुनिया के हर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, वी हैव क्लासिफाइड द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इनकम ग्रुप्स. नेक्स्ट इज द जेंडर. यस, फ्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर द मेल, कुछ मेल स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फीमेल स्पेसिफिक होते हैं. तो वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट इन द डिफरेंट and on the basis of different genders, and accordingly we have to be positions our products. ठीक है. तो दिस इज द थिंग कि वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर. जनरेशंस आर चेंजिंग, सो इट इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में जनरेशंस आर चेंजिंग ऑन अ वेरी रैपिडली मैनर. तो कहीं ना कहीं हमको जनरेशंस का भी एक, देयर शुड नॉट बी जनरेशन गैप. तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी केयरफुल. सोशल क्लासेस की बात करेंगे. एजुकेशन, यस, एजुकेशन प्लेज ए वेरी की रोल. लाइक देखिए ना, एक 10+2 वाला हो गया, एक ग्रेजुएट हो गया, एक पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, एक डॉक्टरेट हो गया, और एक बिल्कुल अनलिटरेट हो गया ना, जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड करते हैं, और एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. देखिए ना, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ के दे आर मेकिंग एनी डिसीजंस. तो दिस इज द थिंग कि कहीं ना कहीं जो बेचारा जो कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल ही लिटरेट है, जिसके बाद एजुकेशन नहीं है, तो कहीं ना उनको प्रोडक्ट सेल करना बहुत ईजी, इट कैन बी वेरी ईजी समटाइम्स.
तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी डिवाइड द होल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड. Race, religions, yes, few product is basically for Hinduism, few product is basically for and what we call Muslims and Christians and Sikh. तो कहीं ना कहीं रिलीजन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नेशनलिटी कुछ इंडियंस के लिए होगा, कुछ साउथ एशियंस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिलिप कॉटलर का बुक आता है, उसमें लिखा होता है दिस इज बुक इज बेसिकली फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज. ठीक है, या सार कंट्रीज के लिए हो गया. तो कहीं ना कहीं हम लोग एक कंट्री के बेसिस पे भी उसको एक राष्ट्रीयता के बेसिस पे भी हम लोग प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं. Next, okay, this is the same thing I've already told you in the last slide. Psychographic. Psychographic is all about the lifestyle, personalities, values, attitudes. Because as we know, every what we call everyone is having a different psychology and different psychological views toward the particular product and services. Then what we have to do, देखिए ना, एक लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल है ना. देखिए इसीलिए देखिए ना, शॉपिंग मॉल्स का बात करते हैं, वो मेट्रो सिटीज में बहुत ज़्यादा हो रहा है. ऑल दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं दे आर हैविंग द मोर परचेसिंग पावर एज कम्पेयर टू द पीपल्स हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज और इन सेमी अर्बन एरियाज. तो दिस इज द थिंग कि हाउ द लाइफ स्टाइल प्लेज वाइल मेकिंग इन बाइंग डिसीजंस. ठीक है, तो बीइंग इन मार्केटर्स वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट लाइफ स्टाइल. पर्सनैलिटीज, यस, एवरीबडी इज हैविंग द डिफरेंट पर्सनैलिटीज. ठीक है, तो कहीं ना यार प्रोडक्ट पर्सनैलिटीज की बात भी करेंगे, कंज्यूमर पर्सनैलिटीज की बात भी करेंगे. ठीक है, तो पर्सनैलिटी किसी को in the same prices people are looking for the different product and a few people are looking for the different product. So because everyone is having a different personalities and the way of thinking, तो कहीं ना कहीं सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका, ओवरऑल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स अलग होते हैं. उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपका हम लोगों को डिवाइड करना. वैल्यूज इज ऑल अबाउट द किस एथिक्स की बात करेंगे, कैसे आपकी कोर वैल्यूज क्या है, कोर बिलीव्स क्या है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है. सर्विसेज जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया से, बेसिकली फॉर द नॉर्थ इंडिया हम लोग मारुति पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. बिकॉज हम लोगों को कार लेनी है तो वी आर मोर ट्रस्टिंग. फर्स्ट थिंग विच केम इन अवर माइंड दैट इज कॉल्ड मारुति. बिकॉज एक हम आपको अगर ब्रांड से पढ़ाएंगे, ब्रांड रेजोनेंस एंड ब्रांड साइलेंस, तो फर्स्ट थिंग विच केम इन आवर माइंड दैट इज कॉल्ड मारुति. तो वाइल इन्वेस्टिंग इन मारुति, तो हम लोग की वैल्यूज, हम लोग का बिलीफ ज्यादा है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल सेगमेंटेशन. बिहेवियरल सेगमेंटेशन हम लोग कई सारी चीज़ों की बात करेंगे, बेनिफिट्स की बात करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है. बेनिफिट बिकॉज इन एवरी प्रोडक्ट दे आर हैविंग डिफरेंट बेनिफिट्स. ठीक है, तो यूजर स्टेटस का बात करेंगे, एक्स यूजर है, पोटेंशियल यूजर है, नॉन यूजर्स है. यूजर्स रेट का बात करेंगे, प्रोडक्ट में बहुत हैवी यूज है, लाइट यूज है, मीडियम यूज है. ठीक है, अकेजन्स है ना, कुछ अकेजनल प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, या कुछ एक रेगुलर यूज के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, लॉयल्टीज की बात करेंगे. दीज आर द थिंग्स वी डिवाइड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बिहेवियरल सेगमेंटेशंस. बिकॉज कुछ ओकेजनली वाले प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ बेनिफिट्स के बेसिस पे करेंगे, कुछ यूजर स्टेटस के बेसिस पे करेंगे, कुछ यूजर्स रेट के बेसिस पे करेंगे. लास्ट दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी स्टेटस. लॉयल्टीज ऑल ओवर, कुछ लोग हार्ड कोर लॉयल होते हैं, कुछ स्प्लिट लॉयल होते हैं. Okay, so this is all about what we call, we are more concerned about the loyalty status. So loyalty में we are more concerned about the hardcore loyalties, split loyalties and shifting and the switchers. Switchers is all about those customers who don't have any loyalties. Whenever they are liking any product, they are switching from one brand to the other brand. So this is all about the marketing segmentation. If anybody is having any queries, they may ask in the comment section of that particular video. Thank you.